Myself, Professor Ashok M. Jain. In this lecture, BEE Unit 3, lecture number 6, I am going to talk about the alternating current through RLC series circuit. Earlier, we have discussed what will happen if you apply the voltage to pure resistance, pure inductance, pure capacitance, RL series combination and RC series combination. Now, here in this lecture, I am going to take what will happen to the when we apply the voltage, alternating voltage to RLC series circuit. And after studying this lecture, you will understand what is the nature of impedance, what is the nature of power factor, what is the resonance condition, what is the frequency, how to find the resonant frequency, and what is the variation. If you vary the frequency, what will happen to the impedance, etc. So all these concepts will be clear. So I am going to take a AC through RLC series circuit. Just see here, this is the resistance, inductance, and this is the capacitance. All these three are connected in series, right? Okay. Now when we apply the voltage, alternating voltage, say V, we are applying alternating voltage, we are applying, so current will flow. And when this current will flow through this resistance, the drop will be across here. This is the VR. Drop across here. This is the VL. And across capacitance is drop across here is VC, right? So VR equal to what? I into R. In case of purely inductive circuit, VL equal to what? I into XL. In case of pure capacitive circuit, VC equal to what? I into XC, right? So VR equal to IR, VL equal to IXL, VC equal to IXC. Now if you want to understand the concept, क्या करेंगे हम भाई? अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो you have to draw the vector diagram. जब आप वेक्टर डायग्राम ड्रा करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी रेफरेंस लेंगे? VR. मैं बोलूंगा VL क्यों नहीं? आप बोलेंगे सर VL रेफरेंस लेंगे, मैं बोलूंगा VC क्यों नहीं या V क्यों नहीं? सो सबसे अच्छा क्या है? चार वोल्टेजेस है, V, VR, VL, VC. इनमें झगड़ा नहीं कराने का. सबसे अच्छा एक क्वांटिटी करंट एज, यू हैव टू टेक करंट एज ए रेफरेंस. If you take current as a reference, clear? So VR कहाँ रहेगा? Always VR in the same phase with the current. We know, we have studied. In case of purely resistive circuit, V and I, in case of purely resistive circuit, VR and I will be in the same phase. VL कहाँ रहेगा? In case of purely inductive circuit, in case of purely inductive circuit, current lags to the voltage by angle of 90 डिग्री. और अगर करंट को रेफरेंस लिया है तो वोल्टेज विल लीड, VL will lead here. And in case of purely capacitive circuit, VC कहाँ रहेगा? VC will lag. Why? अगर VC को रेफरेंस लिया होता तो I will lead by angle of 90 डिग्री, और I को रेफरेंस लिया तो VC will lag. तो ये VC यहाँ आएगा. अभी इन तीनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? सप्लाई वोल्टेज V. क्लियर? इन तीनों का वेक्टर सम कैसे लेंगे? पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, VL और VC का. और इन दोनों का वेक्टर सम लेने के बाद फिर VR से लेना पड़ेगा, तो यू विल गेट द टोटल सप्लाई वोल्टेज V. You can observe here VL and VC both are out of phase by angle of 180 डिग्री. इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? डिफरेंस होगा, VL माइनस VC या VC माइनस VL. अभी क्या लेंगे? VL माइनस VC की VC माइनस VL. इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ VL एंड VC. तो तीन केस आ सकते हैं. पहला केस क्या हो सकता है? VL इज ग्रेटर देन VC, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट VC फ्रॉम VL. दूसरा केस ऐसा हो सकता है VC इज ग्रेटर देन VL, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट VL फ्रॉम VC. तीसरा केस हो सकता है दोनों इक्वल हों. दोनों इक्वल होंगे तो इनका सम कितना होगा? 0. तो ये तीन केस आ जाएंगे. और तो हम वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्री केसेस सेपरेटली.
इज इट क्लियर? सो अगर आपको उसको समझना है तो वी हैव टू ड्रा द वेक्टर डायग्राम. नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस दिस. आई एम रबिंग इट फर्स्ट. ओके, yes, here this is VR equal to IR, VL equal to IXL, VG equal to IXC. Okay, now in case of RLC series circuit, applied voltage is equal to the phasor sum of all these three voltages, right? In equation, the value of VL and VC and hence nature of circuit depends on the value of inductive reactance XL and XC. Value of VL equal to क्या होता है I into XL. वैल्यू ऑफ V इक्वल टू VC क्या होता है I इंटू XC. सो क्लियर, और I तो कॉमन है, तो VL और VC की वैल्यू डिपेंड काय पे करेगी, XL और XC के ऊपर. उसके हिसाब से नेचर ऑफ पावर फैक्टर आने वाला है. लेट अस कंसीडर थ्री केसेस. केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. और ऑल दीज थ्री केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. और कोई एक केस पूछ सकते हैं भाई XL इज ग्रेटर देन XC तो क्या होगा, केस नंबर 1. केस नंबर 2 क्या है, XC इज ग्रेटर देन XL है तो क्या होगा. थर्ड केस XL इक्वल टू XC है तो क्या होगा. क्लियर? सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थ्री केसेस सेपरेटली. ओके, केस नंबर 1 आई एम गोइंग टू टॉक. केस नंबर 1, XL इज ग्रेटर देन XC. अगर XL इज ग्रेटर देन XC है इसका मतलब IXL, बिकॉज सीरीज सर्किट में I तो सेम है तो IXL विल बी ग्रेटर देन IXC. IXL क्या होता है, VL ग्रेटर देन VC, राइट? अगर आप वेक्टर डायग्राम ड्रा करेंगे तो आई एम टेकिंग I एज ए रेफरेंस. VR विल बी इन द सेम लाइन, VR हियर, VL विल बी हियर, because voltage will lead to the current by angle of 90 degree. In case of purely capacitive circuit, current leads, या current को reference लिया तो voltage will lag, VC will lag to the current by angle of 90 degree. Clear? तो ये आपका वेक्टर डायग्राम आ गया. Now you can say VL is greater than VC. So VL का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है compared to VC. अब इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, ये VL minus VC, ये VL माइनस VC, इन दोनों का वेक्टर सम. वेक्टर सम मतलब वेक्टर डिफरेंस आएगा. ओके, अभी इन दोनों का तो ये हो गया. अभी इसका VR का और इसका क्या आएगा, ऐसे पैरेललोग्राम ड्रा करके ये आ जाएगा V पैरेलल टू दिस फ्रॉम हियर, पैरेलल टू दिस फ्रॉम हियर. सो यू विल गेट दिस. दिस इज द सम ऑफ वोल्टेज V. क्लियर? ओके, so this is the vector diagram. So I want to write the V in the rectangle form. So rectangle form में क्या लिखेंगे, horizontal component VR plus फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ये J VL minus VC, J VL minus VC. कौन से फॉर्म में लिखा है, रेक्टेंगल फॉर्म में. VR इक्वल टू क्या होता है, I into R. प्लीज समथिंग इज रॉन्ग, इट इज I R नहीं है, I into R है, दिस इज I into R. प्लीज करेक्ट इट. प्लस J, I कॉमन लिया सो I इंटू XL माइनस J I इंटू XC, I कॉमन ले लिया. क्लियर? सो दिस टर्म I कॉमन लिया तो क्या बचेगा, R प्लस J XL माइनस XC, इसको बोलते हैं Z, इम्पीडेंस Z. तो इम्पीडेंस Z क्या होगा, R प्लस J XL माइनस XC, वेयर XL इज ग्रेटर देन XC, दिस इज Z. अभी इसको आप मैग्नीट्यूड अगर आपके पास वैल्यूज हैं, मान लो ये 3 है, ये 8 है, ये 3 है, या ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है, तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, तो R प्लस 3 प्लस J 4 हो जाएगा. तो ये RL सर्किट हो गया ना. अगर XL इज ग्रेटर देन XC सो सर्किट विल बिहेव लाइक इट इज ए RLC सीरीज सर्किट, बट सर्किट विल बिहेव लाइक ए RL सर्किट, राइट? इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. Z ऑफ द एंगल फाई, Z का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये. और फाई कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट XL माइनस XC अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R. ये तो थ्योरेटिकली है, लेकिन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट. In this case, when XL is greater than XC,
सर्किट विल बिहेव लाइक ए RLC सीरीज सर्किट। RLC होते नहीं है, RLC सीरीज सर्किट में भी सर्किट आइदर बिहेव लाइक RL या RC या RLC, कुछ भी बिहेव करेगा। केस नंबर 1 में XL इज ग्रेटर देन XC है, क्लियर, XL इज ग्रेटर देन XC है, इसका मतलब सर्किट विल बिहेव लाइक ए RL सर्किट, ओके। और RL सर्किट में करंट विल लैग और लीड, यू कैन से वोल्टेज अगर ये है तो करंट क्या हो रहा है, लैग कर रहा है ना, तो करंट विल लैग। सो नेचर ऑफ पावर फैक्टर क्या आएगा, लैगिंग, बी केयरफुल अबाउट इट। करंट लैग कर रहा है तो लैगिंग पावर फैक्टर, करंट लीड कर रहा है तो लीडिंग पावर फैक्टर, क्लियर। सो यू हैव टू राइट दिस केस नंबर 1, मैं रब कर रहा हूं। केस नंबर 2, if XC is greater than XL, if XC is greater than XL, so IXC will be greater than IXL। I कॉमन है बिकॉज सीरीज सर्किट में IXC क्या होता है, VC is greater than VL, ओके। ड्रा द वेक्टर डायग्राम, क्या रेफरेंस लेंगे, करंट रेफरेंस, राइट, ओके। VC क्या होगा, यहां दिखाओ या यहां दिखाओ, ऐसा दिखा सकते हो आप चाहो तो, ऐसा, VR, this is VR, VL, क्लियर। सो VC इज ग्रेटर देन VL, सो दो वेक्टर सम क्या आएगा, ऐसा, VC माइनस VL, इन दोनों का वेक्टर सम ऐसा, ये V, क्लियर ना। तो ऐसा आ जाएगा, तो मैंने यहाँ ना दिखा के वो यहाँ दिखाया। सो दिस इज I रेफरेंस, this is VR in the same phase, because in case of purely resistive VR and I in the same phase, VL will lead to the current और VC will lag to the current, और VC अगर VL से ज्यादा है तो ये ज्यादा बड़ा आएगा, राइट। अभी इन दोनों का वेक्टर सम डिफरेंस होगा तो VC माइनस VL ही आ जाएगा। अभी इसका सम वेक्टर सम और इसका सम इक्वल टू V हो जाएगा। यू कैन ऑब्जर्व V will lag to the current, या you can say current will lead to the voltage, ओके। इसको रेक्टेंगल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये V इक्वल टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VR माइनस वर्टिकल कंपोनेंट माइनस J, वर्टिकल कंपोनेंट VC माइनस VL। I कॉमन लिया, सो I V R इक्वल टू IR माइनस J IXC माइनस IXL। I कॉमन लिया, यू कैन से R माइनस J XC माइनस XL, और दिस टर्म R माइनस J XC माइनस XL होता है Z, सो यू कैन से I इंटू Z, okay, where Z is an up, Z equal to क्या आएगा, you will get Z equal to this, R minus J XC minus XL, right। So polar, you can write in polar form, क्या लिख सकते हैं, Z of the angle phi minus phi आएगा, okay। So Z equal to what, under root of R square plus XC minus XL whole square, phi equal to what, tan inverse minus XC minus XL, ये माइनस है ना, minus XC minus XL upon R. So you will get this. You will see that this is in fourth quadrant. So when in this case XC is greater than XL, circuit will behave like what, RC series circuit. Circuit will behave like what, RC series circuit. Means current leads to the voltage. Hence nature of power factor will be leading. Power factor will be leading. So be careful about it. Okay. Case number 3. That is very important case. Sorry. This is very important case. Sorry. This case number 3. This is called as a resonance condition. I will discuss what is a resonance condition. If inductive reactance XL equal to XC. XL equal to XC. इसका मतलब क्या होगा, VL will be equal to VC.
VL will be equal to VC, because अगर आप IXL करेंगे IXL will be equal to IXC, clear, IXC, so VL equal to VC, right. अब अगर आप वेक्टर डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये क्या है, I रेफरेंस, दिस इज VR, यहाँ से VR, this is VL and this is VC and both are equal, so they will be cancelled to each other, so supply voltage V equal to क्या हो जाएगा, VR, क्लियर ना, बिकॉज अगर ये दोनों इक्वल हैं, दिस इज दिस एंड दिस, सो V इक्वल टू क्या बचेगा, VR, V इक्वल टू VR, VR क्या होता है I इंटू R, और V इक्वल टू क्या होता है IZ, इसका मतलब है I कैंसिल हो जाएगा तो V इक्वल टू R बाई सॉरी R इक्वल टू Z या Z इक्वल टू R, इसका मतलब है Z इक्वल टू R, नो रिएक्टिव कंपोनेंट, J टर्म ही नहीं है, सर्किट विल बिहेव लाइक व्हाट, circuit will behave like purely resistive circuit, circuit will behave like what, purely resistive circuit, and in case of purely resistive circuit what is the power factor, purely resistive circuit में power factor हम पढ़ चुके हैं कितना होता है, 1, unity, so power factor will be unity, clear, the impedance offered will be minimum, क्यों minimum है भाई, ये component ही नहीं है, ये J term प्लस माइनस J term थी ना वो जीरो है, अगर ये जीरो है तो इम्पीडेंस क्या होगा, मिनिमम, और हमको मालूम है I इक्वल टू क्या होता है, V बाई Z, और अगर Z मिनिमम है तो ऑब्वियसली I क्या रहेगा, मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम, दिस केस इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन, क्या है सीरीज रेजोनेंस कंडीशन, XL इक्वल टू XC, XL इक्वल टू XC, सो Z इक्वल टू व्हाट, R, impedance offered will be minimum because this J term 0 है, तो circuit power factor will be unity, this is 0, so impedance offered will be minimum, so obviously अगर ये minimum है तो current will be maximum, clear, so this is called as series resonance condition. What is the series resonance condition, XL equal to R, sorry XL equal to XC, what is the power resistance, Z equal to R, what is the power factor, unity, what is the impedance offered, minimum, clear, minimum, और चौथा क्या, और क्या होगा, current will be maximum, so ये एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि it is a resonance problem, वो आएगा RLC series circuit is given, circuit draws maximum current, सर्किट ड्रा मैक्सिमम कर रहा है, इसका मतलब है कब कर रहा है मैक्सिमम, जब रेजोनेंस कंडीशन आएगी, हाउ विल यू अचीव द रेजोनेंस कंडीशन, हाउ विल यू अचीव XL इक्वल टू XC, XL इक्वल टू क्या होता है 2 पाई FL, XC क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई FC, दोनों में फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब है सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करो तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि XL इक्वल टू XC हो जाएगा, क्लियर, सो ये दोनों इक्वल हुआ तो कौन सी कंडीशन अचीव हो गई, रेजोनेंस, किस फ्रीक्वेंसी पे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यू कैन ड्राइव दैट फार्मूला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XL इक्वल टू XC होगा, क्लियर, सो बी केयरफुल अबाउट इट, हमको दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस कंडीशन, इसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, देखो रेजोनेंस कंडीशन, मैं पहले एक काम करता हूँ, ट्राई करता हूँ, सिंस द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L एंड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C आर कांस्टेंट इन ए गिवन सर्किट, L और C की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL and capacitive reactance XC are varied with and make both equal by varying frequency, इस frequency को क्या बोलेंगे, resonant frequency, the frequency at which XL equal to XC called as resonant frequency, right, FR, which can be obtained as follows, so again this formula is important, so resonant condition क्या, XL equal to XC, XL equal to क्या है 2 pi FL, right, X equal to क्या है 1 upon 2 pi FC, सो यहाँ F आएगा तो F स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 2 पाई L, यहाँ आ जाएगा, और 2 पाई C तो यहाँ है ही, F यहाँ आ गया, सो 2 पाई L इंटू 2 पाई C,
राइट। सो 1/2 इंटू 2 4 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर एल सी, ये आ गया। सो एफ इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ दैट। सो अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर क्या होगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर पाई, अंडर रूट लेने के बाद 4 का 2, सो 2 पाई और रूट एल सी। सो दिस इज द फार्मूला, इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फार्मूला। अगर आपको एल और सी की वैल्यू मालूम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और 2 पाई एफ यहाँ लेंगे तो 2 पाई यहाँ आएगा, तो 2 पाई एफ क्या होता है, ओमेगा आर, ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस इक्वल टू क्या होगा, 1/√LC। क्लियर। so this is very important formula will be used, okay। and थोड़ा सा मैं डिस्कशन और करना चाहता हूँ जिससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। मैं पीछे जाता हूँ, ओके सॉरी, ये दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अगर हम वेरी करते हैं तो क्या होगा, एंड दिस इज द रिएक्टेंसेस ऑन ओम्स एक्सी। अगर आप यहाँ पर अगर एक वेरी करेंगे, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी एक्सएल क्या होता है भाई, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है। एक्सएल इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ एल। सो जैसी जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल विल इंक्रीज लीनियरली, ऐसा इंक्रीज लीनियरली। एक्सी क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी होता है। एक्सी इक्वल टू व्हाट, 1/2 पाई एफ सी होता है, यू नो इट। तो जैसे जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी कम होगा, तो दिस इज द एक्सी। क्लियर। देखो एक कंडीशन ऐसी आई कि यहाँ एक्सएल ज्यादा था और यहाँ एक्सएल एक्सी ज्यादा था, सॉरी, और एक्सएल कम था। तो यहाँ पर इस रीजन में इस फ्रीक्वेंसी रीजन में एक्सी इज मोर, सर्किट इज कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक ए आरसी सर्किट। और आरसी सर्किट में करंट लीड करता है कि लैग, लीड, करंट इज लीडिंग, सो नेचर ऑफ पावर फैक्टर विल बी लीडिंग। इस रीजन में एक्सएल बढ़ता जा रहा है, एक्सी कम होता जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इस रीजन में एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। सर्किट कैसे बिहेव करेगा, लाइक ए आरएल सर्किट। इन केस ऑफ आरएल सर्किट करंट लैग और लीड, करंट लैग्स, पावर फैक्टर का नेचर कैसा आएगा, लैगिंग पावर फैक्टर। बट एक कंडीशन ऐसी भी आएगी इन दोनों के बीच में, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हियर एफ आर, दोनों एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, पावर फैक्टर कितना होगा, यूनिटी, पावर फैक्टर विल बी 1। क्लियर। सो ये हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर इस रीजन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मैं ये इम्पीडेंस ड्रा कर रहा हूँ, इम्पीडेंस एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, आरसी सर्किट जैसा, यहाँ आरएल सर्किट जैसा। तो यहाँ जेड क्या हो रहा है, जेड कम हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, कम इसलिए हो रहा है कि ये डिफरेंस जो है एक्सएल माइनस एक्सी का कम होता जा रहा है। यहाँ पहले ज्यादा था, दिस इज वेरी हाई, दिस इज 0, बाद में ये कम हो गया, ये बढ़ गया, तो डिफरेंस क्या होगा एक्सएल का, कम होता जा रहा है, नहीं हो रहा, कम होता जा रहा है, और यहाँ 0 हो गया। जेड कम होगा कि नहीं, जेड कम होगा, तो पावर फैक्टर जेड क्यों कम हो रहा है, बिकॉज आर जो जे टर्म थी वो कम होती जा रही, तो जेड कम होता जा रहा है, ज्यादा कम हो गया। अभी यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सी कम होता जा रहा है, एक्सएल बढ़ता जा रहा है। तो ये यहाँ तो 0 हो गया था, एक्स कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ फिर से बढ़ने लगा। देखो बढ़ता जा रहा है, नहीं, एक्सएल माइनस एक्सी बढ़ता जा रहा है ना। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस जे इन ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी, तो अगेन जेड बढ़ने लगेगा, तो जेड ऐसा आएगा। क्लियर। तो दिस इज द वी कर्व टाइप का मिलेगा। लेकिन सबसे जेड कम कम कहाँ, सबसे कम कहाँ होगा, यहाँ पर। अगर जेड यहाँ कम है तो इस रेजोनेंट कंडीशन में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो करंट का कर्व ऐसा आएगा। क्लियर। दैट इज द करंट विल बी मैक्सिमम। यहाँ पर कुछ भी cos ऑफ फाई क्या होता है, 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, 1 के ऊपर नहीं जाता। तो पावर फैक्टर भी ड्रा करेंगे ना ऐसा, यहाँ करंट वर्सेस पावर फैक्टर ड्रा किया,
पावर फैक्टर, तो वो भी ऐसा आएगा। ये कहाँ पर आएगा ये वैल्यू FR पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पावर फैक्टर कितना होगा 1 होगा, और ये कम होगा बट लीडिंग होगा, यहाँ कम होगा मतलब लैगिंग होगा। Power factor varies from 0 to 1. So these are the curves for understanding purpose only, right? Okay, just only for your understanding I had drawn this curve. Now I am going to solve some problems. Sorry, first मैं रब कर देता हूँ। Okay, now I am going to solve some problems related with the RLC series circuit. Problem number 1. A series circuit is given, clear? R is given 10 ohm. Inductive reactance XL is given, inductive reactance मतलब XL is given 20 ohm, and the capacitor reactance XC is not given, XC की वैल्यू XC दी है। Connected to 100 volt 50 hertz, 100 volt 50 hertz supply दिया है। It is observed that current in the circuit is maximum. RLC सर्किट है और करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम मतलब ये सीरीज रेजोनेंस कंडीशन है। सीरीज रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है? Z इक्वल टू व्हाट? R। Z इक्वल टू व्हाट? R होता है। एंड XL इक्वल टू क्या होता है? XC होता है। और XL इज गिवन कितना दिया है? 20। इसका मतलब XL इक्वल टू XC इक्वल टू XC भी दिया है 20 ओम। क्लियर? इनडायरेक्टली। ओके, फाइन। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C। XC मालूम है? XC मालूम है भाई, नहीं मालूम था, लेकिन XL इक्वल टू क्या होता है रेजोनेंस कंडीशन में? XC। XL इक्वल टू XC, सो XC भी मालूम है 20। XC इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई FC। XC मालूम है 20, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50, सब कुछ मालूम है तो C मिल जाएगा। C इक्वल टू 1/2 पाई F 50 है और XC कितना है? 20। सो यू विल गेट this 1.59 into 10 raised to power minus 4 farad. Okay, next, the impedance of the circuit. Impedance Z equal to क्या होता है? R। कितना है? R 10 ओम दिया है ना, Z equal to 10 ओम। कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू लिख देने का है। थर्ड क्या पूछा? वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C हो गया, करंट इन द सर्किट। सेकंड क्या है? इंपीडेंस हो गया। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट क्या होता है? रेजोनेंस कंडीशन यूनिटी होता है ना, तो पावर फैक्टर इज 1। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1। फोर्थ, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? V बाई जेड। I इक्वल टू V बाई जेड, और Z इक्वल टू क्या होता है? R एट द रेजोनेंस कंडीशन। तो 100 वोल्ट V दिया है और R कितना है? 10, सो 10 एम्पियर। पावर कंज्यूम क्या होता है? I स्क्वायर R या VI cos फाई। V कितना है? 100 दिया है, 100। I कितना निकाला आपने? 10 एम्पियर। कहाँ निकाला I? We have calculated I 10 एम्पियर, सो 100 into 10, और cos फाई क्या होता है रेजोनेंस कंडीशन में? 1, सो 1000 वाट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं I स्क्वायर R से। I कितना है? 10 निकाला हमने, I 10, ये 10 का स्क्वायर मतलब 100, और R कितना है? 10, so 100 into 10, 1000 watt. So in this way you can solve the problem. This is the problem with the resonance condition. Case number 2. Problem number 2. A coil having a resistance of 5 ohm, R is given 5 ohm, right? Inductance of 0.1 Henry, 0.1 Henry, and connected in series with 50 microfarad, 50 microfarad. RLC तीनों दिए हैं। A variable frequency alternating voltage of 200 volt, variable frequency,
200 वोल्टेज के वन, इसका मतलब वेरी वेल फ्रीक्वेंसी नहीं दी, इसका मतलब पक्का ही रेजोनेंस का प्रॉब्लम होगा. विल सी इट. एट व्हाट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल द करंट बिकम मैक्सिमम. करंट कब किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगा? करंट मैक्सिमम हो रहा मतलब कौन सी कंडीशन है? रेजोनेंस कंडीशन है. क्लियर? इसका मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछी है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो एफ आर जेड इक्वल टू आर. Since current will be maximum, it means it is a resonance condition, right? So Z equal to R, XL equal to XC. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई रूट LC. ये फार्मूला ड्राइव किया था हमने पिछली स्लाइड में. सो 1/2 पाई रूट LC, ये रूट है ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक. 1/2 पाई रूट L कितना है? 0.1 हेनरी. उसकी कितना है? 50 माइक्रोफैराड. So you will get 71.17 hertz. That is the resonant frequency. Clear? Calculate the current and the voltage at this condition. Current equal to क्या होता है? I equal to V by Z. और फिर Z equal to क्या होता है? Resonance condition में R. So V by R. V कितना दिया? 200 volt. R कितना है? 5. So 200/5 that is 40 ampere. Current आ गया. क्या पूछ रहा है? Voltage across coil and voltage across capacitor. कॉइल मतलब ये कॉइल मतलब ये नहीं होती, ये पूरी RL कॉइल होती है. रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज. सो कॉइल का इंपीडेंस Z इक्वल टू क्या होता है? R प्लस जे एक्सएल. R प्लस जे एक्सएल, R प्लस जे एक्सएल कितना है? एक्सएल निकाला है, देखो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई FL. एक्सएल इक्वल टू 2 पाई F कितना है? 71.17 हर्ट्ज. और L कितना है? 0.1. सो यू विल गेट 44.72. सो ZL आ गया. इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यू विल गेट दिस इज इन पोलर फॉर्म, राइट? सो वोल्टेज अक्रॉस कॉइल क्या होगी? I इंटू ZL. I कितना है? ये 40 एम्पियर तो निकाला था. कैन आई टेक एज ए रेफरेंस? करंट को रेफरेंस लिया तो 40 ऑफ द एंगल 0. और ZL ही है ये वाला, ये वैल्यू 45 ऑफ द एंगल दिस. मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, एंगल ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा. दैट इज द आंसर. द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज मतलब I इंटू XC. XC निकाल लो पहले. क्या होगा? निकालने की जरूरत नहीं है. ये जो XL है और XC सेम होगा? नहीं होगा. अंडर रेजोनेंस यस. जो XL निकाला वही XC है. आप चाहो तो करके देख लो, नहीं है तो सेम है. ओके. सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? I इंटू XC. I मालूम है इतना है, रेफरेंस लिया है. XC इक्वल टू ये, हाँ. Z इक्वल टू क्या होता है? R माइनस जे XC. जीरो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ये तो जीरो है ना, माइनस जे समथिंग. जीरो माइनस जे 44.72. इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू विल गेट ये 44.72 ही आएगा, बट एंगल विथ -90 आएगा. प्योरली कैपेसिटेंस में -90 प्लस प्योरली इंडक्टिव में +90, प्योरली रेजिस्टिव में 0 डिग्री. सो दिस इनटू दिस इतना आप द एंगल -90. so ये आपका IXC आ गया. These problems are very simple. Okay, रब करता हूँ. सो ये दो प्रॉब्लम किए हैं डिस्कस मैंने, और इसके बाद आगे जाके एक दो प्रॉब्लम और मैं लेने वाला हूँ. तो दिस विल बी क्लियर इन नेक्स्ट. एक स्लाइड छोड़ के, सॉरी एक स्लाइड नहीं, एक प्रेजेंटेशन छोड़ के, आई विल टेक अगेन फ्यू मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन RLC सीरीज सर्किट. ओके. This is the assignment. Draw the current curve between resistance, inductive reactance, capacitive reactance, impedance, current, power factor versus frequency. I have already दिया हुआ है ये. Okay, so already explain किया, you can see it. Drive the impedance for RLC series circuit when XC is greater than XL. सेकेंड, ओके, नेचर XC इज ग्रेटर देन XL, तो सर्किट का पावर फैक्टर क्या आएगा? लीडिंग रहेगा ना. XC इज ग्रेटर देन XL मतलब RC सर्किट जैसा हो गया. सो मेंशन द नेचर ऑफ पावर फैक्टर लीडिंग. ड्राइव द फार्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. FR इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई रूट LC. दिस इज द असाइनमेंट. थैंक यू very much for listening me carefully.